This is the title for today. Today we are going to discuss basic concepts and assessment. ये बिल्कुल core concepts हैं assessment के ऊपर जो as a medical educationist आपको पता होने चाहिए. ये वो ground है जो आज हम बात करेंगे. ये वो ground है या वो foundation है जिसके ऊपर आपकी medical education की skills develop होंगी. अगर मैंने ये असेस करना है कि डॉक्टर गौतम या डॉक्टर वसीम या डॉक्टर सादिक मेमन ने मेडिकल एजुकेशन में कुछ कोर्स किया है, तो शायद इस प्रेजेंटेशन में से कुछ क्वेश्चंस मैं उनसे पूछूंगा जिससे मुझे अंदाजा होगा कि इनको बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है. सो प्लीज गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन वेरी वेरी केयरफुली. अगर कोई कंफ्यूजन है, please feel free to ask question and I'll be very happy to answer your questions. मेरा नाम डॉक्टर फैसल खानी है. कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं. I work as professor of surgery at Dow University of Health Sciences. I've done my fellowship in general surgery, जो कि मेरा दाल रोटी है, लेकिन मेरा जो passion है वो medical education है. Let's move on. These are the 5 things that we are going to discuss today. कोई एक आदमी इनको पढ़ सकता है मेरे लिए और सबके लिए? Any one of you? Dr. Gautam, are you there? Yes, sir. Can you please read it for us? Oh, okay, so the first learning outcome is the assessment versus evaluation. Are they different? So this is the question. The second learning outcome is should we assess? Third one is should we use one or multiple instruments to assess? Different instruments, tools we can use to assess. The fourth one is what are different tools of assessment. The fifth learning outcome is what are the characteristics of good assessment tool. Thank you so much, Dr. Gautam. So these are the 5 things that we are going to discuss. हमारा पहला आज का जो task है वो ये डिसाइड करना है कि हमारे सीनियर्स और हमारे जूनियर्स बाज़ दफा असेसमेंट और इवैल्यूएशन की टर्म्स यूज करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर दे सिनोनिम, आर दे दिस both terms mean the same thing or are they different, so that as a medical educationist you should have one notch above your colleagues जिनको assessment और evaluation का फर्क नहीं पता. This is the first task. दूसरा सवाल, क्या वाकई इम्तिहान जरूरी है लेना? हम इतनी मेहनत करते हैं असेसमेंट के ऊपर, इसकी क्या जरूरत है? When we finish this presentation today, we all will agree whether assessment should be done or whether assessment should be done away with. The third thing is, if at all we decide as a group that assessment is important, then should we be using only one tool? For example, सिर्फ हम MCQ से dentistry के बच्चों को assess करें या हम उसके अंदर multiple tools डालें, OSCE वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये भी हम डिसाइड करेंगे. और अगर हम डिसाइड करेंगे कि एक से ज्यादा टूल्स चाहिए, तो फिर हम डिसाइड करेंगे ये कौन से टूल्स हैं जिससे हम अपने लर्नर को असेस कर सकते हैं. और सबसे आखिरी सवाल, बाज़ दफा कैंडिडेट्स कहते हैं जी इम्तिहान का पेपर खराब था, ऑस्की की स्टेशंस अच्छी नहीं थी. तो ये उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट ऑल ऑफ यू शुड नो what are the features or characteristics of a good assessment tool. कल जब आप academic council में बैठें as a professor, as an associate professor of your particular subject, and the vice chancellor or the principal points finger at you कि डॉक्टर फला 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 आपका इस दफा का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं था, तो ये उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन एज अ मेडिकल एजुकेशनर यू शुड नो द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ व्हाट अ गुड असेसमेंट टूल और एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ. सो ये 5 चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, कैन वी मूव ऑन? Yes, sir. ऑलराइट, मेरा एक सवाल है आपसे. ये जो 5 टास्क हमने रखी हैं अपने सामने आज की सुबह में, क्या ये आपसे रेलेवेंट हैं? डू यू थिंक कि ये 5 चीजें पता होनी चाहिए हमें? अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि नहीं जी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा. सर इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. चलिए जी, पहला सवाल. I want you to take a piece of paper and write whatever comes to your mind regarding this question. I'll give you 1 minute or
maybe 1.5 minutes. Write it down. Take your time. Please write down whether you think assessment and evaluation are similar or are they different. It's not. देखें, rule number 1, please, no talking. Please spare good time writing down your answer. And I have a list of all the participants. हम किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना आंसर पढ़ दे, चाहे गलत हो चाहे सही हो. I don't care, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि सही है या गलत है, लेकिन I want you to practice writing down a good answer to this question. चलें जी, pencils down. Dr. Sadiq Memon, sir, are you there? Yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam warahmatullah. Dr. Sadiq, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Are you good? Alhamdulillah. Thank you so much for being here. अच्छा, Dr. Sadiq, may I request you to read your answer? Do you think assessment and evaluation are same or are they different? To me, there's not much difference. These are the two sides of a coin. They are not much different. They are two sides of the same coin. Thank you so very much. Dr. Rashia, are you there? Dr. Rashia, अपना mic on कर देंगे, please. Yes, yes, sir. Assalamu alaikum. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Dr. Rashia. The question was, as a medical educationist, do you think assessment and evaluation are same or are they different? Yes, sir. Yes, sir. Both are different things, but Okay. it's a picture of the two sides. सर Okay. असेसमेंट में हम उसको इस तरह कर सकते हैं कि हम अगर स्कोरिंग करें साथ साथ हम उसका पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के बारे में. और इवैल्यूएशन में हम जो भी स्टूडेंट है उसको हम डायरेक्ट जज करेंगे बाय पॉइंटिंग मार्क्स के. हाँ, हमें अगर एक हिस्ट्री पे उसको 2 नंबर ही देने तो उसमें हमने 1.5 या 1 मार्क्स दे दिया, उसमें हम उसको जज नहीं कर सकते. आई थिंक व्हाट आई फील द डिफरेंस. बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक भी डिफरेंस समझ में नहीं आया कि दोनों में आप मार्किंग दे रहे हैं स्टूडेंट को, असेसमेंट में भी और इवैल्यूएशन में भी, तो फर्क क्या है दोनों में? यस सर. बताइए. यस सर. क्या डिफरेंस है? सर मार्किंग के साथ हम, हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा सिग्नल्स का इशू है इसलिए शायद आवाज कट रही है मेरी. मार्किंग तो हम दोनों भी दे रहे हैं, लेकिन असेसमेंट में हम सही है. ओके, दैट्स गुड. सर मार्किंग हम दोनों में देंगे, लेकिन असेसमेंट में हम स्टूडेंट को पर्सनल अपने हम राय दे सकते हैं कि हाँ तुम इसको और भी अच्छा बेटर कर सकते हो, या आपका असाइनमेंट इतना अच्छा, इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट. और इवैल्यूएशन में आपने जो आपको 10 मतलब टोटल 10 पॉइंट में से जितने आप उसको पॉइंट्स देने, आप उसमें 2+2 तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, माइनस कर सकते. तो सर मुझे तो ये समझ में असेसमेंट और एवल्यूएशन के. थैंक यू सो मच. डॉक्टर सानिया कमर, आपने हाथ उठाए हुए, कैन वी हैव योर आंसर प्लीज? सर अस्सलाम वालेकुम सर. सर बेसिकली असेसमेंट जो है वो फीडबैक है हाउ लर्निंग इज गोइंग ऑन. ओके. एंड इवैल्यूएशन वी जज फ्रॉम द लर्नर कि उसको कितना कुछ आता है. तो असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है.
बट evaluation में जजमेंट होती है. हम evaluation के थ्रू भी असेसमेंट करते हैं. तो evaluation is a part of assessment, but दोनों basically different equations में आते हैं. ओके, ठीक है. डॉक्टर गौतम, बाकी लोग जो है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें. डॉक्टर गौतम, यू आर द लास्ट वन टू आंसर. डॉक्टर बुशरा, हम आपसे फिर अगला सवाल नेक्स्ट स्लॉट का पूछ लेंगे. यस डॉक्टर गौतम. Yeah, so the assessment means, we are judging the student during the course and giving the feedback. While there is a difference between assessment and evaluation. Evaluation means we are assessing the student when he finishes his course here during the examination. So different timing. Actually, there are difference in the different timing during the course and after the finishing the course here during the exam. Whatever we are assessing in the exam, that is the evaluation. ओके, ठीक हो गया. अब मैं ये चाहूंगा कि अगली 2-4 स्लाइड्स पे हम फोकस करेंगे और फिर हम आपके जवाबों को दोबारा रीवैल्यूएट करेंगे कि आपके आंसर यही हैं जो आपने अभी बताए या यू वांट टू चेंज योर स्टांस. शैल वी मूव ऑन? यस सर. ओके, डॉक्टर सानी अपना हाथ नीचे कर दीजिएगा. हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लॉट में विल गिव यू अ चांस. लेट्स मूव ऑन. You remember this slide? Yes, sir. Yes, sir. All right. अगर आपको याद हो, हमने जो हमने मेरी आपसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी आई थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि जब when you plan a trip, there are 3 things that you need to do. Number 1, you decide where do you want to go, what is your destination. 2, once you decide your destination, you want to decide the way to commute to your destination, means how you want to go there, by train, by air, by road, or maybe by walking. And finally, when you have reached your destination, you decide कि आप अपनी destination पे पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे हैं. और आप जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपनी जर्नी से कुछ सबक सीखते हैं, जो गलतियां वो करते हैं, ताकि जब नेक्स्ट जर्नी हो उनमें ये गलतियां ना की जाए. इसी स्लाइड की बेसिस पे I showed you another slide, which is here. When you design a educational program, now that educational program can be a workshop. 3 घंटे का workshop अगर आपने डिजाइन करना है, या आपने 1 घंटे का लेक्चर बनाना है, या आपने बड़ी लेवल पे MS जनरल सर्जरी या MS ENT का एक कोर्स डिजाइन करना है, या एक डिग्री प्रोग्राम डिजाइन करना है, फॉर दैट मैटर आपने FCPS का कोर्स डिजाइन करना है, वो these are all known as educational activities. चाहे वो करिकुलम हो किसी भी डिग्री प्रोग्राम का, चाहे वो करिकुलम हो किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम का, कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई वर्कशॉप हो, these are known as educational activities or an educational program. Now, this educational program is based on 3 things. The first thing you decide is, what do you want your learners to learn? And these are known as learning outcomes. For example, the learning outcomes for this particular presentation on this Sunday is that the CHP students should be able to, design a good assessment tool for their respective course. So these are learning outcomes. हमने जाना कहाँ है, उसको अगर हम मेडिकल एजुकेशन में देखें तो हम क्या चाहते हैं कि इस कोर्स की एंड पे हमारे लर्नर्स को क्या क्या आना चाहिए. These are known as learning outcomes. Now, once you have laid down, when I say laid down, you have written down the learning outcomes. The next thing you want to decide is how your learner will achieve those outcomes, and these are known as teaching methodologies. For example, if I want my educational activity to make my final year MBBS students to learn to tie a knot, my teaching methodology by a lecture would not be a good method. It has to be a hands-on workshop. So I have, based on the learning outcomes, I will decide the teaching methodologies. Now, once this is done, as a teacher, I'm interested to know whether the learning outcomes that were laid down at the start of the program have actually been achieved by the learners or not. This is known as assessment.
आप ये मालूम करें कि आपके लर्नर्स ने जो आउटकम्स हैं वो अचीव किए भी हैं या नहीं किए, और अगर किए तो कितनी लेवल तक किए हैं। इस प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the first time the word assessment has come in this presentation. That assessment means that you as a teacher want to know whether your learners have actually achieved the objective or not. मैंने आपको वो कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, सबको याद होगी। याद है आपको वो टॉमी वाली कहानी सुनाई Yes, थी आपको? sir. हमने तो बोलना सिखा दिया, उसे सीखा या नहीं वो अलग बात है। उसने एब्सोल्युटली, अगर किसी को ये कहानी नहीं पता है तो मुझे अभी बता दी। मैं बहुत काम की कहानी है और आप सबको आनी चाहिए एज अ मेडिकल एजुकेशन। इफ समबडी डजंट नो दैट स्टोरी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिपीट इट। मुझे नहीं मालूम। वेरी ओके। एक बच्चा था, उसने अपने बाप को बोला कि जो हमारा पालतू कुत्ता है टॉमी, इसको मैंने बोलना सिखा दिया है। हर माँ बाप की जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट अल्लाह ताला देता है जिसपे माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि आज मौका है जब हम बच्चे को ये सबक दें कि उसने गलती की है। एंड दिस पर्टिकुलर मोमेंट वाज इन फादर्स हैंड। उसने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हें पता है झूठ बोलना कितनी गलत बात है। तुमने बोला है कि ये जो है कुत्ता बोल सकता है, इसको बोलो बात करे। बच्चे ने कुत्ते को बोला, टॉमी टॉमी प्लीज टॉक। अब आपके ख्याल में टॉमी ने क्या करना था? वो बोलेगा? भौंकेगा। वो भौंक भी नहीं सकता, जरूरी नहीं कि वो भौंके भी, और अगर भौंका भी है तो वो बोलना नहीं हुआ। उसने दुम हिलानी शुरू कर दी। बाप ने अपने बेटे से वही वाली बात की कि बेटा तुमने झूठ बोला है और ये बहुत गलत बात है। और जैसे मैंने पिछली दफा आपसे कहा था, कुछ बच्चे अपने बाप के भी बाप होते हैं। उसने बाप से एक बड़ी अहम बात की जो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए जो मेडिकल एजुकेशन। उसने बाप से कहा कि मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने कुत्ते को बोलना सिखाया है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उसने बोलना सीख लिया है। अगर मैं 1 या 2 घंटे का CHP ट्यूटोरियल ले लूं और फिर मैं उन्हीं से बड़ा फखरिया तौर पे कहूं कि मैंने 40 स्लाइडों पे जबरदस्त असेसमेंट की क्लास ली है, तो क्या ये सही होगा या ये ज्यादा सही होगा कि मैंने आज 2 घंटे के बाद जितने मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको असेसमेंट के बारे में अच्छा टूल बनाने की बारे में उनको सिखा दिया है, उन्होंने सीख भी लिया है। तो ये कौन सी चीज बेहतर है? हम लेक्चर लेके आते हैं तो क्या कहते हैं, हमने आज बड़ा जबरदस्त लेक्चर लिया था। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि आपके स्टूडेंट्स ने वो चीज सीखी है या नहीं है। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने सीखी है या नहीं है, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, असेसमेंट के बाद जो आखिरी चीज होती है उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। असेसमेंट के मार्क्स की बुनियाद पे, रिजल्ट के ऊपर और बहुत सारे पैरामीटर्स और होते हैं जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशनल प्रोग्राम। MS जनरल सर्जरी का प्रोग्राम अच्छा है या बुरा है, HCPS एंड गायनी ऑप्स अच्छा प्रोग्राम है या बुरा है, उसको जब आप इवेल्युएट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेल्युएशन। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट and evaluation, and the next slide will make it clear. Please read this slide. Assessment, it's a process by which teacher judges whether the student has achieved the learning outcomes. So assessment is basically judgment of the learner. Now, if you use the marks, scores, and results of the examination or the assessment and use that data to evaluate the worth of an educational program, this is known as evaluation. So in short, assessment is of a learner and evaluation is of an educational program. अगर किसी को यहाँ तक बात समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। Please be free to tell me कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में आया? सर समझ में आ गया। Yes, sir. Everyone? Yes, sir. मैं सॉरी चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। अगर किसी सर रिपीट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ और उसके लिए मैं आपको लेट मी गो बैक। चले जी, क्या हम
असेस करते हैं जितने लोग यहाँ पे 51 के 51 लर्नर्स मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स, डू वी ऑल असेस इन वन वे और द अदर? No. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. Are you sure कि आप असेस नहीं करते हैं? Yes, we ऐसे do. तो पीछे से हो Yes, नहीं sir. पा रहे। Yes, sir. सर करते हैं। लाइव तो दिख नहीं रहे ना सब। नहीं सर, असेस नहीं करते हैं सर। असेसमेंट नहीं हो पा रही सबकी। All right. I would like सर you to हम ये focus. असिस्ट करते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्ड वो कर रहा है या करते नहीं, हैं, लेकिन जब हम ये group असिस्ट को नहीं कर रहे अलग-अलग कि करते हम में हैं। भी कोई फॉल्ट हो सकता है। नहीं, आपकी अपनी फॉल्ट जो है ना, दैट इज नॉट योर असेसमेंट, वो फिर इवैल्यूएशन में आ जाएगी। ओके ओके सर। ठीक है, जब आप ये हम इसको भी अब बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं 51 के 51 कॉलीग्स मेरे, किसी ने असेसमेंट जिंदगी में नहीं किए कभी? बहुत सारे होंगे हैं? हमेशा करते हैं। यस सर। यस सर। Yes, we do, sir. कौन कहता है कि हमने असेसमेंट नहीं किए कभी? Anyone? चलें, let's have a look at this picture. What do you see here? KFC burger. It may be a KFC burger, it may be a burger cooked at home, it may be a McDonald's burger, but it's a burger. Now, is it good or bad? गुड। Paid for health, No, sir. no. Decide after eating, sir. Sir, we Sir, decide after eating. लुकिंग गुड। They're looking good. We'll have to make a good, good but one to get. not beneficial for health. Nutritional After assessment. Not All right. चलो, अब अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए। अब जिन लोगों से मैंने सवाल किया था कि आप असेस करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने कहा हम असेस नहीं करते हैं। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता और पूरा महीना हम लोग सब असेसमेंट करते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए बेहतर नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। देयर इज अ बर्गर हियर एंड आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, इज व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस डिश? विल यू ईट इट? इज दिस नॉट एन असेसमेंट? ये अच्छा है या बुरा है? ये असेसमेंट है ना? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, डॉक्टर मुकेश, मैं आपको अभी 2 मिनट दूंगा, पहले ये समझ लीजिए। सो बेसिकली बिफोर यू बाय दिस बर्गर or before you eat this burger, you make a quick decision whether you want this burger or not. This is an assessment. अच्छा, कुछ लोगों ने कहा ये देखने में अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये खाने में अच्छा है। लेकिन किसी एक चीज पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए ये बर्गर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात आएंगे। मिसाल के तौर पे आप फैसला करेंगे क्या इसकी टेस्ट अच्छी है, आप फैसला करेंगे क्या ये देखने में अच्छा है, आप फैसला करेंगे ये हेल्दी भी है या नहीं है, आप ये भी फैसला करेंगे कि ये मैं खरीद भी सकता हूँ। हो सकता है कि ये अगर 300 रुपए का बर्गर हो या 250 का हो, हम खरीद लें। लेकिन अगर कोई कहे 3000 का बर्गर है, then maybe it may be very healthy, very attractive and tasty, we might not buy it. और सबसे अहम बात ये है कि क्या इस वक्त जब हम में से ज्यादा लोग 15-20 मिनट पहले नाश्ता करके बैठे हैं, क्या हमें इसकी जरूरत है भी या नहीं है? Is this not assessment? Okay, based on these factors, you have come up with a decision that what is the value or worth of a dish. लिहाजा जब आप अपनी जिंदगी में रोजाना असेसमेंट करते हैं, जो आपको डिसीजंस और ऑप्शंस मिलते हैं उनके बारे में हाँ या ना के बारे में फैसला करते हैं, एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट you also make value decisions. What is the value of the student and what is the value of the program? Can you make a decision about the worth or value of a student? Has he achieved all the learning outcomes? Is he or she competent? This is known as assessment. And when you make a value decision about a program, for example, मुनीब ने जब ये 6 महीने का कोर्स खत्म करना है, तो वो बैठ के
बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे बर्गर के ऊपर आपने 5 फैक्टर्स देखे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मुनीब बैठ के डिसाइड करेगा कि क्या ये CHP प्रोग्राम वर्थ है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्या इसको इम्प्रूव किया जाए, या ये इतना खुदा खास्ता बेकार है कि इसको कंप्लीटली बंद कर दिया जाए. So when you make a decision about a educational program, this is known as evaluation. Now read this again. खामोशी के साथ इसको पढ़िए and let me know now, do you understand the difference between assessment and evaluation? Dr. Sania, I'll come back to you. पहले ये पढ़ लीजिए and मैं आपसे बात करता हूँ. Please spare 15 seconds and read it. जी डॉक्टर सानिया, कैन वी हैव योर क्वेश्चन प्लीज? सर मतलब जैसे जो भी आपने डिस्क्राइब किया, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो कभी भी सिंगल पर्सन इवैल्यूएशन नहीं होती? होती है, लेकिन गलत होती है. मतलब हम कभी भी किसी को एक मतलब असेसमेंट तो हो गया सर, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो इंटरव्यू देने को आया, ठीक है सर, तो हमने उसको असेस करके इवेल्युएट करके किसी डिसीजन पे पहुंचना होता है ना, तो ये इसमें कैरिकुलम या कोई एजुकेशन तो आई नहीं, तो हम इसमें कैसे फिट करेंगे? नहीं, मुझे आवाज, आई एम सो सॉरी, कैन यू स्लोली रिपीट योर क्वेश्चन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सर स्लोली रिपीट कीजिए, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ताकि सब लोग सुन सकें आपका क्वेश्चन. कि हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब सब कुछ मेडिकल एजुकेशन तो नहीं सर, आपने बताया कि हम जिंदगी में भी सारा दिन असेस करते रहते हैं, जैसे आपने एक बर्गर की एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मतलब या कोई भी फर्दर हम जॉब के लिए जाते हैं, तो एक पर्सन है इंडिविजुअल, ठीक है सर, उसका आपने इंटरव्यू ले लिया, सब कुछ जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमने असेस करके देन वी इवैल्यूएट, ठीक है, कि हमने इसको वेदर ये अपॉइंट करना है या नहीं. अब ये आपने अभी बताया कि evaluation is the process judgmental of education program, like of a whole program, whole curriculum. अब एक सिंगल पर्सन के लिए ये evaluate वर्ड यूज होगा सर? नहीं होगा. यहाँ पे सर इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो जी, आप एक चीज याद कर लीजिए, evaluation आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस की, एजुकेशनल प्रोग्राम की या पॉलिसीज की होती है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती है. जहां पे इंडिविजुअल्स को आप असेस करेंगे या उनकी वर्थ मालूम करेंगे, उसको टर्म यूज की जाती है असेसमेंट. क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल QEC बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में है. अगर आपको QEC के काम का पता हो तो QEC HEC ने इसलिए बनाया है कि वो स्टूडेंट्स क्या टेस्ट नहीं लेती हैं, न फाइनल MBBS का न BDS का. QEC का काम ये है कि वो डिग्रीज जो वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को, उनको देखे कि उनकी वर्थ क्या है. मिसाल के तौर पे अगर एक XYZ मेडिकल कॉलेज है जिसने एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है किसी भी सब्जेक्ट में, और उस डिप्लोमा करने के बाद उसके जो स्टूडेंट्स पास होके बाहर जा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, उनको कोई नहीं उठा रहा नौकरी के लिए, क्या उन स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट्स है मार्केट के अंदर पेशेंट्स के हवाले से, सर्जरीज या उनकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो डिप्लोमा प्रोग्राम फेल हुआ है अच्छे लर्नर्स प्रोड्यूस करने. जब आप ये डिसीजन लेते हैं उस प्रोग्राम के बारे में कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम बहुत खराब है, इसको बंद कर दिया जाए, या ये डिप्लोमा प्रोग्राम ठीक है लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, या ये डिप्लोमा प्रोग्राम बेहतरीन है, इसको कंटिन्यू किया जाए, दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन. जब आप स्टूडेंट्स को टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट. उसके रीजन क्या है वो अभी हम बात करेंगे. डॉक्टर सानिया, डज दैट मेक सेंस? इन शॉर्ट सर हमें इवैल्यूएट वर्ड को अब सोच के यूज करना चाहिए. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. लेट्स मूव ऑन. आगे चलें या यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? सर नहीं डॉक्टर मुकेश इज हियर. सर असेसमेंट तो ठीक है, लेकिन मैं जजमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि ये प्रोग्राम है, लाइक डिप्लोमा हो या उस पे कोई भी उसकी एवेल्यूट किया जाए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मतलब इसकी वर्थ कितनी है. तो हम जो बच्चों को लेक्चर देते हैं बीइंग अ टीचर, तो उसमें एवोल्यूशन की कितनी मकसद वर्थ है, मकसद हम उसमें अपने लेक्चर को एवोल्यूट करेंगे कि वेदर इट इज इट कंटेन्स सम मटेरियल व्हिच इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स. जी बिल्कुल. देखें,
मैंने आपसे एक अर्ज किया है कि जो आप इवेल्युएट करते हैं वो किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी को करते हैं, चाहे वो आपका लेक्चर क्यों ना हो। Right. बहुत अच्छे, मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। Right. बहुत जो अच्छे टीचर्स होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं, अगर आप एक अपना हॉबी बना लें, अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आप एक क्वेश्चनियर बना दें जो आप अपने स्टूडेंट्स को दे दें एट द एंड ऑफ योर लेक्चर कि प्लीज फिल दिस फॉर्म एनोनिमसली एंड गिव इट बैक टू मी। ये भी आपके लेक्चर की इवैल्यूएशन हो गई है। उसमें बहुत सारे, मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं इस वक्त सबके सामने सीना बड़ा चौड़ा करके कहूं जी मैंने बड़ी अच्छी क्लास दी है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर मेरे 51 पार्टिसिपेंट्स एक परफॉर्मा भरें जिसमें मेरी इस प्रेजेंटेशन और क्लास के ऊपर अपने कमेंट्स दें, दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। उस इवैल्यूएशन, और आप यकीन कीजिए हम जब सीपीएसपी में वर्कशॉप्स देते थे अपने सुपरवाइजर्स के, तो हमारे बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स फॉर्म भरते थे और उनकी रिजल्ट के मुताबिक और उनकी ओपिनियन के मुताबिक बहुत सारे फैसिलिटेटर्स को सीपीएसपी ने मना कर दिया था कि आप आइंदा आके वर्कशॉप नहीं लेंगे क्योंकि आपके बारे में कमेंट्स अच्छे नहीं है। हमें ये हर वर्कशॉप के बाद हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी जाती थी हमारे वर्कशॉप की। तो ये होती है इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन का पर्पस है कि उस लेक्चर को बेहतर बनाया जाए या आइंदा डॉक्टर फैसल गनी को ये क्लास ना दी जाए क्योंकि ही डज नॉट टेक अ गुड क्लास। दिस इज इवैल्यूएशन। Right, sir. Right. Bas, It is clear now. It is clear now. Thank you so much. I'll take last question from Dr. Mukesh before we move on. Dr. Mukesh. Dr. Mukesh. Sir, here is Dr. Mukesh. अच्छा, I आप हो asked गई the बात? question. Okay. जी, जी, Thank sir. you so much. जी, जी. All right. Okay, Shall we move on? Shall we move on? Sir, I have a question. कौन है? Please introduce yourself. Sir, Girish. Sir, the question is assessment में भी हम इंडिविजुअल की असेसमेंट कर रहे हैं, तो अगर लेक्चर कोई बना रहा है वो भी तो इंडिविजुअल ही है, वो कोई प्रोग्राम तो नहीं है, वो एक लेक्चर है। राइट, देखें, जब आप लेक्चर का क्वेश्चन, मैं आपसे एक होमवर्क दे सकता हूं कि आप अपने लेक्चर का एक फीडबैक फॉर्म बनवा लीजिए, ठीक है? क्या उस फीडबैक फॉर्म में सिर्फ ये लिखा होगा कि डॉक्टर फैसल गनी की आवाज बड़ी अच्छी थी, वो बड़ा क्लियर बात कर रहे थे, या उसमें और फैक्टर्स भी आएंगे कि उन्होंने जो कंटेंट दिया था वो कैसा था, उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसी थी, उनका डिस्क्रिप्शन पावर, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बेसिकली दे विल ऑल लीड टू, द फोकस इज द लेक्चर, नॉट डॉक्टर फैसल गनी और डॉक्टर गौतम या डॉक्टर सादिक मेमून या डॉक्टर वसीम ABCD कोई भी। ये आपके वर्कशॉप या लेक्चर का फीडबैक है, इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है? चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। डॉक्टर असद, डॉक्टर असद प्लीज। जी सर। सर, एक तो सर मुझे ये थोड़ा क्लियर कर दें कि एवल्यूएशन प्रोग्राम आवाज कट रही, डॉक्टर असद आवाज कट रही है आपकी। इंडिविजुअल्स की नहीं होती है, डॉक्टर असद nobody can hear you, आपके यहाँ कुछ वॉइस प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल्स। डॉक्टर असद, can you hear me? Yes sir, I will hear you. लेकिन आई एम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही थी। आई वांट यू टू होल्ड योर क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए, जब तक आपके पास सिग्नल्स सही हो जाए। लेट्स मूव ऑन, हम ऑलरेडी इस पे बहुत टाइम कर चुके हैं। Okay, ठीक sir. है, इज इट ओके? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लेट्स मूव ऑन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज टेक आउट योर पेपर्स एंड पेन्स एंड पेंसिल्स एंड राइट डाउन। और वो लोग जो अब जवाब दे चुके हैं वो जवाब नहीं देंगे। Question number 2, should we assess? If the answer is yes, why? You have about 1.5 minutes.
डॉक्टर गिरीश पहले आप आंसर लिख लें, हम बात करते हैं, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, we'll talk. Let everyone finish the task first. सवाल ये है कि बच्चों का इम्तिहान क्यों लेना चाहिए, उसकी क्या रीजंस हैं? चलें जी, बैक टू द फोरम. डॉक्टर रुखसाना, Yes, sir. I am here. can we have your answer, please? Yes. Very slowly and clearly, because you are now teaching the class. Why Yes. should we assess and why should we assess? Sir, assessment is necessary to improve the verb. Means if we have given a task, we are not assessing anyone. We not judge either he is doing well or not. Okay. So That's it. It is necessary to assess everyone. This verb को कोई भी act हो उसको भी assess करना जरूरी है, whether he or she is doing wrong or right. क्यों? So that उससे क्या फर्क पड़ेगा? Let him or her do wrong or right. What difference would that make? आपको क्या फर्क पड़ता है? the implementation वो हम करते हैं जिस भी क्लास की, जैसे for example अगर मैं स्टूडेंट को असेस नहीं कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना कन्वे हुआ? Okay. तो ये तो आपकी असेसमेंट हुई. नहीं, स्टूडेंट को गेनिंग पावर तो स्टूडेंट का ही होगा ना. तो अगर स्टूडेंट ने गेन नहीं किया है तो उससे क्या होगा? आप क्या डिसाइड करेंगे? उससे अपने आप को ठीक करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर. That's evaluation. सर ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम असेसमेंट तो जैसे आपने कहा था घर में भी करते हैं, थ्रू आउट हर डे पे होती हुई, घर में स्कूल में हर जगह पे होती है. असेसमेंट का ये है कि जो हमें एक जैसे एवेल्यूएशन और असेसमेंट है, तो एवेल्यूएशन और असेसमेंट आपस में बहुत ही क्लोज हैं. वो प्रिंसिपल जो हमें बताए गए हैं एवेल्यूएशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो असेसमेंट में सही हो रही है या नहीं हो रही है. ओके. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी. आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया था? मैंने पंप से किया है, नवाब शाह से. राइट. और आई अज्यूम कि आपने एमबीबीएस वहां से किया था? जी जी. राइट. तो जब आपको एमबीबीएस की डिग्री दी गई थी तो उससे उन्होंने क्या सिर्फ 5 साल के, क्योंकि आप 5 साल अटेंडेंस कंप्लीट थी, उससे आपको डिग्री दे दी थी या उन्होंने आपको कोई इम्तिहान भी दिया था आपसे? डिग्री दी थी सर. सिर्फ डिग्री दे दी थी, कोई इम्तिहान नहीं दिया था? वाह. नहीं, इम्तिहान दिया था, उसके बाद ही डिग्री मिलेगी ना सर. एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली. बगैर इम्तिहान के लिए. तो आपके ख्याल में इम्तिहान क्यों दिया गया था? सर उन लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है, जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो लर्नर को कितनी हद तक मिल रही है. क्या ये आप मेरे सवाल का जवाब है? और आपके कंटेक्स्ट में पंप से जब आपने एमबीबीएस किया था तो क्या इम्तिहान इसलिए दिया गया था कि ये डिसाइड किया जाए कि डॉक्टर रुखसाना पास हैं या फेल हैं, उनको डिग्री दी जाए या ना दी जाए? क्या ख्याल है? क्या असेसमेंट का एक मकसद सर्टिफाई करना है, जो आपने बात की, whether the learner is competent enough to work, and hence we certify that. जैसे मार्कशीट में उन लोगों ने पासिंग और फेलिंग की वो परसेंटेज बनाई हुई है ना. जो भी मतलब, that is not important कि वो परसेंटेज लिखते हैं या ग्रेड लिखते हैं, that is not important. The answer is that one of the reasons for assessment is to certify whether the student has passed or has failed. When he or she has passed, PUMS certifies that Dr. Rukhsana is a safe and effective doctor to work in the community. क्या ये assessment का एक purpose हो सकता है कि हम ये decide करें कि ये बच्चा पास है या फेल है? Simple. Okay, let's hold it there. Dr. Saima, why should we assess? Any other reason?
Dr. Saima, are you there? आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, Dr. yes, sir, Rana, I'm here. Sir, we can categorize the students on the basis of a categorize से क्या मतलब है? पास फेल, दोबारा कहिए. पास फेल। So like if we हो गया. if we देखो, rank the students, एक मिनट, हैंग ऑन. पास फेल डिसाइड हो गया कि एक मकसद असेसमेंट का है पास या फेल. इसमें हम बात कर चुके हैं. इसके अलावा जी डॉक्टर साइमा. sir, if we like जैसे हम first, second या third इस तरह से भी जो है ना वो different assessments का part होता है, तो that can also be achieved on the basis of assessment. ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या फायदा होगा? I think this is a source of motivation for students as well, ओके, ठीक है. because Alright. the ones who are put ओके, ठीक है. चले, हम इस पे अभी बात करेंगे. और कोई रीजन इसके अलावा? That to able to perform the dedicated task, वो जो कह रहे थे, आप कह रहे थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये होगा कि हम किसी को असाइनमेंट कोई भी टास्क दे रहे हैं तो हमें ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कि कितना अच्छा टास्क वो परफॉर्म कर सकता है. तो जज करेंगे ना सर, यही इसका हो जाएगा कि उसको जज करेंगे कितना किया. हाँ, but for this is for individual, that's why this is assessment. Sir, may I explain? तो वहाब जी प्लीज. It is help the student understand their errors, understand feedback receive on their errors, and help them improve. और ये every stage of learning पे हम करते हैं. ठीक है. Assalamu alaikum, Dr. Wahab here, if I may. जी डॉक्टर वाह. Maybe linking the student performance to the learning outcomes or objectives that you mentioned in your slide. It links us, it gives us a good measure whether we were able to do both of things in assessment. It can be whatever at the end or Right. enable देखिए us to डॉक्टर, measure effectiveness of teaching and linking the student performance to the learning outcomes. एब्सोल्युटली. देखें, आपकी बात बिल्कुल सही डॉक्टर वहाब. द अल्टीमेट पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू सी वेदर द लर्नर हैज अचीव्ड द आउटकम्स और नॉट. ठीक है, वी ऑल एग्री टू दैट. ठीक है. सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ तो जी बोलिए. असेसमेंट इज नेसेसरी, व्हिच इज मींस के क्लास असेसमेंट इसलिए जरूरी है कि डिटरमाइनिंग द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, एक तो ये भी जरूरी है. दूसरा ये ठीक है. डिटरमाइनिंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, वो किस स्टाइल से वो समझ रहे हैं आपकी चीजें, और ओके. उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, टॉपिक्स में, तो किस तरह के टॉपिक्स को हम किस तरह उसको पढ़ाएं. असेसमेंट है. इज जरूरी कि आउटकम आपका जो है, लर्निंग गोल है आपका, वेदर आपने उसको डिलीवर किया या स्टूडेंट्स ने उसको लिया, कितना लिया, क्या उनकी एरर्स हैं, और आप उनकी एरर्स को किस तरह फिर जस्टिफाई करके उनको फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे. दैट्स व्हाई असेसमेंट इज नेसेसरी. राइट. मैं आपका सॉरी आई मिस्ड योर नेम. आपने क्या नाम बताया? शकील अहमद सर. शकील डॉक्टर अहमद. शकील. अच्छा डॉक्टर वाह, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी थी कि द ओवरऑल पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू सी वेदर द लर्नर हैज अचीव्ड द लर्निंग आउटकम्स और नॉट. द क्वेश्चन इज कि उससे हमें क्या फायदा होगा. डॉक्टर सॉरी आई मिस्ड योर नेम. डॉक्टर शकील. जी सर. डॉक्टर शकील, डॉक्टर राशिया और इसके अलावा एक और 2-3 लोग थे जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, डॉक्टर मरियम प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे भी बात करता हूँ. एक चीज बार बार आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए असेस करते हैं. तो आपको याद है शुरू में कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम उनकी यस सर. डॉक्टर राशिया आपने भी ये कहा था, मैंने कहा था होल्ड कीजिएगा. नाउ Yes, इज द sir. टाइम टू टेल यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, और ये बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगी. असेसमेंट की 2 टाइप्स होती हैं. एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट इनको आप अजबर कर लीजिए. वन इज अ समेटिव असेसमेंट एंड द अदर इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजियर. नाउ समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या फर्क है? समेटिव असेसमेंट वो है जिसमें आपने एक डिसीजन लेनी है रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट और डिसीजन अबाउट पास और फेल. ठीक है, ये 3 Yes, sir. आपको तीन बुलेट्स नजर आ रही हैं. दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ summative assessment in which you take a decision whether the student has passed or failed certification,
or an entry test is a summative assessment. 500 सीटें हैं, 5000 स्टूडेंट हैं, आपने 500 को लेना है. This is a decision making by scoring. This is a summative assessment. थर्ड ईयर के स्टूडेंट को फोर्थ ईयर में प्रमोट करना है या नहीं करना है. This is a decision. This is a summative assessment. ठीक हो गया. जहां पे डिसीजन लेना है स्टूडेंट के बारे में उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो आप स्टूडेंट की भलाई के लिए करते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए करते हैं, उसकी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके उसको फीडबैक देखते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग और लर्निंग और एजुकेशन को बेहतर करे. दिस इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट. ठीक है. बुलेट नंबर 4 पढ़िए. फॉर्मेटिव एक बार रिपीट कर दें. जी, आप पहले बुलेट नंबर 4 पढ़िए. It's a feedback. Identification of deficiencies and learners. The purpose is to give feedback to the learner. मैं आपकी एक मॉक टेस्ट लूं से कोई भी एक छोटा सा आपका ओपीडी के अंदर आधे घंटे का एक टेस्ट लूं और फिर मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दूं और उसका पर्पस आपको पास या फेल करना नहीं है. मैं इसलिए चाहूंगा कि डॉक्टर आशिया की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने गट साउंड से पूरे 5 मिनट तक नहीं सुने थे. एंड द पर्पस इज टू इम्प्रूव यू. दिस इज formative assessment. I have not scored you to pass or fail you, but my purpose of observation is to give you feedback for your improvement. This is formative assessment. So if somebody asks you what are the purpose of assessment, the answer would be it can be summative to decide whether a student passes or fails. उसको MBBS की डिग्री दी जाए या ना दी जाए या उसको MHPE की डिग्री दी जाए या ना दी जाए. One is certification. Number 2, making a decision whether they should be admitted in a program. For example, जब मैंने MHPE में एंट्री JSMU में अप्लाई किया था तो मेरे ख्याल में कोई 40 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था और उनको 12 लोग चाहिए थे. They took an entry test and made a decision कि yes, Dr. Faisal Ghani is worth it. उसको प्रोग्राम में लिया जाए और बाकी 32 लोग जो थे या 30 लोग थे उनको ना लिया जाए. So this is summative assessment. प्रमोशन के लिए फर्स्ट ईयर MBBS से सेकेंड ईयर में जाना है या नहीं जाना है. This is also summative assessment. But if you assess a student just for the sake of feedback and improve his or her learning without passing or fail, this is formative assessment. ठीक हो गया. जब आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं, आप खाना बनाते हैं उनको डिनर या लंच पे बुलाने के लिए, yes or no? अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं. Yes sir. Yes. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जब मुझे लड़कों का नहीं पता है, खवातीन का मुझे पता है कि जब घर में वो खाना बनाती हैं तो क्या वो और आप सब खवातीन मुझसे एग्री करेंगी कि खाना आप सर्व कर देती है बगैर चखे हुए. नो नो क्यों? No sir. क्यों? नो क्यों? सर. क्या कर आपने टेस्ट उनको डेवलप टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए जी. तो जब देखने आप के लिए कोई कमी तो नहीं रह गई. एग्जैक्टली तो जो आप खवातीन खाना बनाते हुए चखती हैं खाने को कि इसकी टेस्ट सही है, इसका नमक मिर्च सही है, जायका अच्छा है, ये समेटिव असेसमेंट है. आप अपनी असेसमेंट Yes, कर रहे sir. हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसमें आप कोई पास फेल नहीं कर रही हैं. आप सिर्फ ये देखती हैं कि खाना अच्छा बना है नहीं बना है. डॉक्टर गाशिया जो मेरी ट्रेनिंग थी, क्या ये उस वक्त Yes sir. उनमें कोई डेफिशिएंसी, कोई नमक कम तो नहीं रह गया खाने में, मैं अभी ठीक कर दूं ताकि इम्तिहान में जब जाए तो ये गलती ना करें. जब वो खाना मेहमान खाएंगे और कहेंगे कि जबरदस्त खाना बना है, दिस इज समेटिव Formative. असेसमेंट. सो दैट इज इफ यू Submit. सो जब Formative. कुक नो सर. समेटिव असेसमेंट, दैट इज समेटिव असेसमेंट. जब 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 कुक अपना खाना खुद चखता है देखने के लिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. जब मेहमान खाने के बाद उसकी तारीफ करता है और डिसीजन देता है कि जी बड़ा जबरदस्त खाना बनाया था आपने, दिस इज समेटिव असेसमेंट. ठीक हो गया. आगे चले, बहुत लंबी बात हो Yes, गई sir. थी इस पे. And finally, the last purpose of assessment is evaluation. अगर एक कोर्स है जिसमें 100 के 100 बच्चे पास हो रहे हैं तो वो भी बेकार कोर्स है. क्यों? क्योंकि वो कोर्स अच्छे और बुरे लर्नर्स को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है. हमारे यहाँ MBBS में 99.9% रिजल्ट आती थी. इट वाज अ यूजलेस कोर्स.
अगर वो एक अच्छे और बुरे लर्नर के बीच में फर्क नहीं कर सकता, इट्स अ बैड कोर्स. अगर कोई भी पास नहीं हो रहा, अगेन इट इज अ बैड कोर्स. सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज कि जब आपने असेसमेंट कर दी है, उसकी जितने भी स्कोर्स हैं और रिजल्ट्स को एग्जामिनर्स बैठ के एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट. उस रिपोर्ट की बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोग्राम अच्छा या बुरा है. दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन. सो असेसमेंट की दो बड़ी रीजंस हैं. वन इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, द पर्पस इज फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, and second is a summative assessment for a decision making certification, to pass or fail, to admit, and finally evaluation. Let's move on. Please spare a minute to read these two bullets, highlighted bullets. Now please take out your paper and pencil and answer yes or no. Please अपने mics off कर दीजिएगा. Thank you. Dr. Renaz, are you there? Sir, I am here. All right. Can you answer this question? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. We assess in बस सिर्फ yes or no. देखें, सवाल ये है, should we use one or multiple instruments? The answer is one. Multiple, sir, multiple. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Dr. Mariam, आपने पहले भी हाथ उठाया था. Are you there? Yes, sir. Dr. Mariam, पहले तो आप ये बताइए आपने पहले क्यों हाथ उठाया था ताकि उसको हम Sir, एड्रेस करें. it was regarding when you said that in assessment we have to see if we are able to achieve the learning outcome or not. That's what I thought initially, but isn't it evaluation because we are seeing if the tutor was able to achieve it or not? Okay, okay, ठीक हो गया. So if the tutor is achieving or not, that is evaluation. Yes, so if we are seeing that if we are able to achieve the learning outcome, that is not assessment, that is evaluation, right? Absolutely. Thank you so very much. Thank you. बिल्कुल सही है. Now please answer this question, Dr. Mariam. Yes, multiple, I guess. Okay. Dr. Wasim, sir, आप यहाँ पे हैं? Yes, वसीम sir. शेख साहब? Yes, sir. Yes, sir. I am here. सर Yes. कैसे हैं आप खैरियत से हैं? I am fine, sir. I am fine. Alhamdulillah. आपसे बात हो रही है. नहीं, thank you, sir. Thank you. Thank you. अच्छा, Yes, वसीम भाई, sir. My answer is yes. My answer is yes, sir. We should use multiple instruments? Yes. We should use multiple instruments. Okay. Dr. Ali Hamad, sir. Hello. Sir, Dr. Mukesh is here. Dr. Mukesh. Yes, sir. I think multiple नहीं यूज करेंगे. एक क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, उस पे देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स की एक्चुअली किस तरीके से किस वे से वो हमें रिप्लाई करते हैं. देन वी असेस फ्रॉम सिंगल थिंग. दैट इज वेरी इजी. अगर आपने देखें, मैं आपसे कहूँ कि यार ये फाइंडर के स्टूडेंट्स हैं, इनकी असेसमेंट कर दो कि इन्होंने सर्जरी कितनी सीखी है, तो क्या एक टूल काफी है इंस्ट्रूमेंट का या असेसमेंट का, या एक से ज्यादा टूल यूज करेंगे आप असेसमेंट के लिए? एक से ज्यादा होगा सर. आई थिंक कि अच्छा तो ऐसा है कि एक टूल रखा जाए सर. ओके, आई एम सो ग्लैड. ठीक है, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये जवाब दिया. उसमें ये पता पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की अप्रोच कितनी है इस एक पे, क्योंकि सबको हमें असेस करना है ना. एक को नहीं, ठीक है, सबको असेस करना है तो टूल एक होना चाहिए. अच्छा, ओके फाइन. मैं सिर्फ ये समझ लूं कि क्या जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त 54 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, हम समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट और असेसमेंट टूल. सबको पता है क्या इसका क्या? Yes. Yes. An MCQ is an assessment tool. A short answer question is an assessment tool. OSCE is an assessment tool. ठीक है ना? So, Dr. Mukesh, आप कह रहे हैं कि we should be using one good assessment tool, right? Dr. Mukesh, है ना? Okay, yes, fine. Sir. हम दूसरों की भी ओपिनियन ले रहे हैं. Dr. Asad, are you with us? Yes, sir. क्या ख्याल है आपका?
Sir, I think we should use multiple tools because to assess the students, one tool is not sufficient. So we in a curriculum design of the degree programs like MS, MBBS, we will use to assess the students in MCQs, BCQs, Viva, OSCE, and OSPE. So these are the different tools we use to assess the students. All right. डॉक्टर असद ने ये कहा है और सब सुन लीजिए, और डॉक्टर मुकेश ने भी. डॉक्टर मुकेश said कि we should be using one tool. डॉक्टर असद ने कहा कि no, I don't agree, we should be using more than one tool and there are different tools. It can be multiple. अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर लूं कि there is no term as BCQ. मैं तकरीबन पिछले 20 साल से BCQ सुन रहा हूं. मैंने कई जगहों पे जहाद करने की कोशिश की कि BCQ का कोई नाम नहीं होता है. The correct name is MCQ one best type. आज के बाद से ये टर्म यूज होगी. सो डॉक्टर असद का ये ख्याल है कि हम एक से ज्यादा टूल यूज करेंगे, चाहे वो MCQs भी हो सकते हैं, वो OSCE भी हो सकती है, वो और भी तरीके हो सकते हैं. So we will hold the discussion here and we move on to the next slide. Can I ask you a question? Yes, Hello. sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. बल्कि 2 सवाल पूछूंगा मैं, और प्लीज रेज योर हैंड, कोई बीच में ना बोले. अगर हमारे यहाँ बहुत सारे यहाँ फिजिशियंस भी मौजूद हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी होंगे. आई एम अ जनरल सर्जन, तो मेरा इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि अगर आपने किसी आदमी में डायबिटीज को चेक डायग्नोज करना है तो आप कैसे करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. लेट अदर्स टॉक आल्सो. जो लोग अब तक नहीं बोले हैं, नहीं डॉक्टर गौतम, आप भी आप नहीं, कोई और somebody else. सर सॉरी, डॉक्टर मुकेश इज हियर. सर इसमें डायबिटीज का एक ही टूल है फॉर डायग्नोसिस. नहीं चाहिए, आपसे मैं जवाब नहीं ले रहा हूँ. प्लीज रेज योर हैंड्स. प्लीज रेज योर हैंड्स. नोबडी इज टॉकिंग. डॉक्टर मरियम. Yes, sir. बोले. Sir, we'll take history, and there are multiple methods to diagnose it, tools to diagnose it. History, and we'll tell them to take the FBS and RBS reading, FBS and RBS readings 3 times a day, and HbA1c. So there are multiple tools to diagnose it. अगर डॉक्टर मरियम मैं आपसे कहूँ कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है आजकल, और आप कहें कि आपको तो डायबिटीज है, जाके आप वो इंसुलिन शुरू कर दें, तो क्या डॉक्टर गौतम आपसे एग्री करेंगे इस बात पे? Even I won't agree with myself on that. Even you will not agree. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. लिहाजा जब आप डायबिटीज के लिए हिस्ट्री लेंगे कि जी आपको डिसयूरिया तो नहीं, सॉरी पॉलीयूरिया तो नहीं है, थर्स्ट तो नहीं है, आप मुझे एग्जामिन करेंगे फॉर वेट लॉस एंड फॉर डिलेड वुंड हीलिंग, एंड देन मे बी यू विल कंफर्म इट बाय डूइंग ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन A1c और ब्लड शुगर. तो जब आप डायग्नोसिस के लिए एक से ज्यादा टूल करते हैं, एक टूल पे रिलाय नहीं करते हैं, वही प्रिंसिपल मेडिकल असेसमेंट में भी आपको याद होना चाहिए कि किसी एक टूल की बेसिस पे आप स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी एवेल्युएट नहीं कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है सर, लेकिन डायग्नोसिस में we have a best test, right? Best diagnostic test. So then it all waters down to one. If HbA1c is raised, then we'll label the patient as diabetic, won't we? Of course we would. लेकिन naturally क्या होता है मुझे आप बताइए. How would So you then the route think? is the history examination and all of this. आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे अभी एडवाइस करेंगे कि अपना जाके हीमोग्लोबिन A1c करना? आपसे कहूँगा क्यों? Why? So don't you think कि as a doctors we always start with symptoms and then move on to examination and then confirm it by investigation. Logic तो यही कहती है ना? Yes, yes. लॉजिक यही कहती है. अब मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे होती है. लेट्स मूव ऑन. नाउ नंबर 1, इन मेडिसिन और इन गायनी सर्जरी व्हाटएवर, जो भी क्लिनिकल साइड है, जितनी भी टास्क हैं, दे यूटिलाइज मोर देन. जी बोले सर. सॉरी सर, इंटरप्टिंग यू सर. देखिए डायबिटीज के मल्टीपल टूल्स तो हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें ना सर. एक होती है इन्वेस्टिगेशन, सजेस्ट इन्वेस्टिगेशन. दूसरी होती है
दूसरी होती है कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन। Yeah, सो according to WHO criteria, we go for only postprandial and fasting blood sugar. मेरी करवाएंगे? Fasting blood sugar and 2 hours postprandial. आप मेरी करवाएंगे फास्टिंग एंड 2 आवर्स पोस्टप्रांडियल? नहीं No सर, need, पहले sir, इसमें no क्या need. If patient have a history. हिस्ट्री तो क्या हिस्ट्री टूल, तो क्या हिस्ट्री और एग्जामिनेशन टूल? अच्छा चलें, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, अपेंडिसाइटिस। क्या मैं डायरेक्टली आपका अल्ट्रासाउंड करवा लूं कि यार डॉक्टर गौतम या डॉक्टर मुकेश या डॉक्टर मरियम को अपेंडिसाइटिस हो गया, खुदा ना खास्ता, go and do a CT No, with sir. contrast? No, sir. You first examine, First history followed by physical examination. Absolutely, क्योंकि ये सारे जब आपस में अल्वाराडो स्कोर 4 से ऊपर आएगा तो आई विल बी कन्विंस्ड दैट पेशेंट हैज अपेंडिसाइटिस एंड देन, ठीक है ना? तो एक किसी टूल पे रिलाई नहीं किया जा सकता, राइट? आलिक फोसा में टेंडरनेस है, आप अपेंडिक्स नहीं निकलवाएंगे मुझसे जब तक कि मैं इसको मल्टीपल टूल से कंफर्म ना करूं। और दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट बुलेट हियर, आप ये पढ़ लीजिए पहले, पहली बुलेट। जितनी भी टास्क हैं एज अ डॉक्टर, क्या उसके अंदर एक ही डोमेन होता है या एक से आपको मैं डोमेन याद करवा लूं कि एजुकेशन के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं या 3 कंटेंट्स होते हैं। वन इज ब्रेन का, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं या नॉलेज कहते हैं। सुबह डॉक्टर मुकेश ने नाश्ते में क्या खाया था, दिस इज नॉलेज। अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, ये नॉलेज है, दिस इज नोन एज कॉग्निटिव डोमेन। द सेकेंड डोमेन इज साइकोमोटर, जो आप ब्रेन और मसल्स की एक्टिविटी से करते हैं, जिसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। एंड द थर्ड इज योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर विद द पेशेंट, दिस इज नोन एज अफेक्टिव डोमेन या बिहेवियर। ये 3 डोमेन याद है आपको, लास्ट टाइम करवाए थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे हैं, और मेरा ज्यादा अटेंशन उन पे जो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक आमतौर पे उसी ग्रुप से होता है जो खामोश बैठे रहते हैं। दे नो एवरीथिंग बट दे डोंट टॉक। आप ये बताइए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं मेडिसिन के अंदर, क्या उसके अंदर सिर्फ एक डोमेन होता है या एक से ज्यादा डोमेन होता है? एक से ज्यादा डोमेन होते हैं सर। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक से ज्यादा होता है। व्हेन यू वांट, सुन लीजिए, आप, मुझे पता है आप लोगों को पता है, when you want to diagnose and treat a patient, it consists of knowledge about the symptoms of the disease and progression of the disease. Knowledge चाहिए ना? Appendicitis के क्या symptoms हैं? This is your knowledge. You should be able to examine the patient, especially patient's vitals and abdomen. This is psychomotor domain or skills, and your behavior with the patient and his or her attendants, which means that every important task in medicine or surgery or OBG or ENT, eye, orthopedics needs utilization of more than one domain. Yes or no? The answer is yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपसे ये कहूं, अभी किसने मुझे यस कहा था? Yes, sir. डॉक्टर मुकेश। डॉक्टर मुकेश, अगर डॉक्टर फैसल गनी आपसे ये कहे कि जी मैंने तकरीबन 4 किताबें पढ़ी हैं अपेंडिसाइटिस के ऊपर, लेकिन किया कभी नहीं है मैंने, आप मुझसे अपना अपेंडिक्स निकलवाएंगे? आई हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज अबाउट अपेंडिसेक्टमी। मैं आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ा सकता हूँ कि अपेंडिक्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन किया नहीं है मैंने कभी। निकलवाएंगे मुझसे? कभी भी नहीं निकलवाएंगे। या फॉर दैट मैटर डॉक्टर गौतम कहते हैं कि जी मैंने यूट्यूब पे स्पोर्ट्स कार चलाने के 10,000 वीडियोस देखे हैं, लेकिन चलाई कभी नहीं है। मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको हैदराबाद से कराची लेके जाता हूँ। जाएंगे डॉक्टर गौतम के साथ? मैं तो नहीं जाऊंगा कम से कम। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेंगे, इसलिए वापस ही नहीं आएंगे और अपनी विरसे की वो सारा मामला तय करके जाएंगे। लिहाजा साबित ये हुआ कि सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पे अच्छा डॉक्टर नहीं बना जाता है, जिस तरह नॉलेज की बुनियाद पे अच्छा ड्राइवर नहीं बना जाता है। या अगर मुझे बहुत अच्छी सर्जरी आती है लेकिन नॉलेज मेरी 0/0 है और मैं हर्निया करते हुए एक नर्व काट दूं और मैं आपसे पूछूं यार वो देखना कौन सी नर्व काटती है मैंने, तो आइंदा मुझसे आप हर्निया नहीं करवाएंगे किसी पेशेंट का। तो नॉलेज के साथ साथ स्किल के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। I may have an encyclopedic knowledge and very good skill, but my behavior is very bad with the patient और उसके attendants के साथ।
तो वो भी सही नहीं है, विच मीन्स कि फॉर एनी गिवन टास्क इन मेडिसिन यू नीड टू हैव, जी डॉक्टर मनान गिव मी अ मिनट, फॉर एनी सर जैसे देखिए एक स्टूडेंट होता है, उसकी कभी अटेंडेंस कम होती है और पीरियोडिकल टेस्ट 1 में बहुत अच्छा होता है, 2 में फिर किसी वजह से वो कम परफॉर्मेंस करता है। जब हमारी इंटरनल एवल्यूएशन बन जाती है, उसकी मतलब समझो कि एवरेज बन जाती है, बट इन अ फाइनल एग्जाम जो हम मतलब फाइनल एवल्यूएशन करते हैं उसमें वो टॉप करके जाता है। मतलब आप वाली बात के मतलब हम मल्टीपल टूल्स यूज करेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है तो वो मतलब जो ना हाँ वो वहाँ पे मतलब सही काम कर रहा है कि या नहीं कर रहा है, या हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे फॉर इंडिविजुअल और फॉर ऑल वो वहाँ पे सक्सेस हुए या नहीं हुए। बिल्कुल सही है। इसीलिए डॉक्टर मन्नान जो आपने पॉइंट किया है कि साल के आखिर में इम्तिहान लेना काफी नहीं होता है, आपने मल्टीपल ओकेजन्स पे हर महीने या हर आप ये जो हमारे जमाने में साल के आखिर में इम्तिहान होता था, पूरा साल कोई नहीं पढ़ता था और आखिर में छुट्टियां लेके करते थे, वो तरीका गलत था। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब हमें हर एक्टिविटी के हिसाब से इन बिटवीन हम जो असेसमेंट कराते आते हैं, मतलब इट्स अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर वी पीपल, जो मतलब जो हमें फाइनल में जो ना उनको जो ना वो एनालाइज करने में जो ना आसानी हो जाती है। और जो आपने बात की अभी 2-3 स्लाइड्स में और क्लियर हो जाएगी, जो आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि न सिर्फ हमने मल्टीपल टूल्स यूज करने बल्कि हमने साल में कई फ्रीक्वेंटली असेसमेंट भी लेते रहना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। चलें जी, अब एक बात सुन लीजिए, वो टास्क जो एक से ज्यादा डोमेन यूटिलाइज करे उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने स्टूडेंट को कहूं कि जी आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर लीजिए और मैं आपको स्कोर कर रहा हूं या मार्क कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? आपने कफ बांधा और आपने स्टेथोस्कोप रखा, आपने ब्लड प्रेशर बताया 120/80 एंड द आंसर इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट कॉम्पिटेंसी, दिस इज जस्ट साइकोमोटर स्किल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ साइकोमोटर स्किल यूज की है। लेकिन अगर स्टूडेंट जाता है, पेशेंट को सलाम करता है, उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता है, उसको बताता है कि वो क्या करने वाला है या क्या करने वाला है, कफ बांध के एग्जामिनर को बताता है कि मैंने अब रेडियल आर्टरी के ऊपर एनाटॉमी बताता है कि यहाँ पे मैंने स्टेथोस्कोप रखा है, और उसके बाद कफ को अनरैप करके पेशेंट का शुक्रिया अदा करता है। तो पहली वाली टास्क में जिसमें सिर्फ साइकोमोटर डोमेन था और दूसरी वाली टास्क में नॉलेज भी थी एनाटॉमी की, बिहेवियर भी था, उसने कंसेंट लिया और उसका थैंक्स किया, और स्किल तो थी उसने 120/80 बताया। इसके अंदर तीनों डोमेन्स यूज हुई हैं, दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंसी। तो डोमेन में और कॉम्पिटेंसी में फर्क है। डोमेन एक पार्ट को इवेल्युएट करता है या असेस करता है, कॉम्पिटेंसी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डोमेन्स होते हैं। ठीक है, लिहाजा अगर स्टूडेंट को जज करना है तो तीनों डोमेन्स की असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 2 सेकंड का वक्फा लूंगा और इस स्लाइड को इस बुलेट को चाहूंगा कि आप समझें बात को। मुझे जी डॉक्टर वसीम। सर मैं प्रोफेसर इसराज साहब जो हमारे थे उनसे अक्सर मैं सुनता था कि मेमोरी के जो प्रोसीजर्स हैं, मेमोरी को एग्जामिन करने के, मेमोरीज जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पर हम जो है ना देखते हैं कि मेमोरी के प्रोसीजर जितने हैं उसी तरीके से उनको एग्जामिन करने के तरीक़ाकार होते हैं। तो ये सिर्फ डोमेन काफी हैं या मतलब उसको इन प्रोसीजर्स के जरिए, जैसे एमसीक्यू है या शॉर्ट ऐसे है या मतलब लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उनसे हम उसकी कोई मेमोरीज का एग्जामिनेशन भी करते हैं? देखें, आपको डॉक्टर मोइन साहब ने उस दिन बताया था कि नॉलेज डोमेन जो है ना उसके 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है, पहले ये समझ लीजिए फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, C1, C2 एंड C3। C1 ये है कि मुझे रिकॉल ऑफ फैक्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई क्या है और मैं आपसे कहूंगा कि जी इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है अपेंडिकुलर आर्टरी, दिस इज जस्ट रिकॉल C1 लेवल। अगर आप मुझे एक डेटा देंगे कि जी एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, उसको स्प्यूटम आ रहा है विथ ब्लड इन इट और फीवर भी है, और मैं आपसे कहूंगा जी बेस्ड ऑन दिस डेटा मैं इवेलुएट करके कहूँ कि मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, दिस इज C2 व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज।
और मैं फिर आपको अगर तीसरे लेवल पे कहूँ कि जी इसको ये एंटीबायोटिक देनी है, इसकी ये ट्रीटमेंट है, ये इसका ईसीजी और एक्सरे चेस्ट बता रहा है, दिस इज C3 लेवल। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप कम से कम C3 नहीं तो कम से कम C2 पे जरूर इवेल्युएट कीजिए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि रिकॉल ऑफ नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। ये रटिफिकेशन है, ये रोट लर्निंग होती है जो हम डिस्करेज करते हैं। वो नॉलेज जो आप अप्लाई ना कर सकें अपनी डेली लाइफ में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, बाकी जो आपका सवाल था उसके लिए जरा होल्ड कीजिएगा, अगली 2-4 स्लाइड हैं जो आपको बताएंगी कि आप असेसमेंट के लिए कौन से टूल्स कब किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, चलें जी, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ and let's read this. Somebody read this bullet for me. Holistically judge competency assessment, all 3 domains is necessary. Do you agree with this? Yes. अगर एग्जामिन पेशेंट की डायग्नोसिस में मैं सिर्फ नॉलेज असेस करूं तो क्या मैं ये भी कर लूंगा कि इसको नॉलेज बहुत है तो ये एब्डोमेन की एग्जामिनेशन भी अच्छी कर देगा? No. नो सर, सिर्फ उस पर डायग्नोसिस तो नहीं बना पाएगी। नहीं बना, एग्जैक्टली। और अगर मैं उसकी एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन कर इवेल्युएट कर लूं, असेस कर लूं, उसकी नॉलेज भी कर लूं, तो क्या मैं ये भी असेस कर लूंगा कि इसका बिहेवियर भी पेशेंट के साथ अच्छा नहीं होगा? मैं नहीं कर सकता हूं जब तक कि मैं उसके लिए कोई टूल ना लगाऊं। इसीलिए किसी भी एक टास्क को असेस करने के लिए एक से ज्यादा असेसमेंट टूल्स की जरूरत होती है, जो अभी क्लियर हो जाएगी बात। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, और शुरू में डॉक्टर ग्रीश ने शायद कहा था, आई डोंट नो, जिन्होंने कहा था कि जी सिर्फ एक टूल यूज करना चाहिए, या वन ऑफ सर ये गलती मैं नहीं कर सकता। I'm so sorry, I missed the name, I'm so sorry for that. डॉक्टर गौतम ने कहा था एक टूल, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था सर, मैंने कहा था। इंसान सीखता है, डोंट वरी। डॉक्टर मुकेश इज हियर। डॉक्टर मुकेश, आई एम सो ग्लैड कि आपने एक बिल्कुल अलग बात की। दिस इज वेरी गुड टू थिंक बियॉन्ड व्हाट अदर्स थिंक, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन अब बात ये क्लियर हो गई है कि जी बोले सर, इसमें 2 चीजें हैं जिस बेस पे मैंने ये बात की थी। एक है बेसिक साइड, दूसरी है क्लिनिकल साइड। ठीक है, अगर आप क्लिनिकल साइड में आएंगे वहां तो मल्टीपल टूल्स ठीक है, यू आर राइट। अगर आप बेसिक में आ रहे हैं, आई थिंक जब हम एग्जाम लेते हैं या किसी स्टूडेंट को असेस करते हैं, तो जैसे एग्जाम में हो रहा है, वहां पे एक क्वेश्चन दिया जाते हैं 5 क्वेश्चन के, सर आपको यही पूछने हैं। तो मैं उसमें ये होता है कि स्टूडेंट की असेसमेंट कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बेसिक और क्लिनिकल साइड की, डिफरेंशिएट की। सर मैं समझ गया, लेकिन डॉक्टर मुकेश ये बताइए, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बेसिक साइड के अंदर कोई स्किल्स नहीं होते? स्लाइड्स को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख के डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं, या सिर्फ उससे थियोरेटिकल पार्ट पूछ लेते हैं एमसीक्यू में? नहीं सर, वाई भी होता है सर, वाई भी होता है, ओसपी भी होती है, ये सारी चीजें होती है एक बेसिक साइड पे। तो ये इट इज अ डिफरेंट टूल, नॉट ओनली वी टेक ओनली MCQs और थ्योरी एग्जाम, बट वाइवास ओसपी ये होते हैं सर एग्जाम में, बेसिक में होते हैं। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी। लिहाजा डॉक्टर मुकेश, बेसिक में भी आप एक से ज्यादा टूल यूज करते हैं टू चेक डिफरेंट डोमेन्स, क्योंकि अगर पैथोलॉजी के अंदर आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रख के अगर पेशेंट को असेस करेंगे, ये उसकी साइकोमोटर स्किल को आप असेस कर रहे हो। हो सकता है बिहेवियर पार्ट इतना ना हो, आई टोटली एग्री, क्योंकि वहाँ पे सर जो बेसिक साइड है उस पे हम मल्टीपल टूल यूज करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर दिया जाता है, हम उनको जो नॉलेज देते हैं प्रैक्टिकली उनकी परफॉर्म करवाते हैं, फिर उनकी असेसमेंट के लिए हम उनकी मल्टीपल टेस्ट वन क्वेश्चन भी देते हैं कंप्यूटराइज, हम उनकी 6 मंथली जो है वो इवैल्यूएशन जो लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। डॉक्टर साहब आवाज क्लियर नहीं है, इंटरप्शन हुई है। चले एक मिनट, प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिए, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, व्हाट आई वांट यू टू लुक एट दिस मैन, हिज नेम इज जॉर्ज मिलर, he was a psychologist,
and he proposed a model for assessment. And this model was known and still known as Miller's triangle or Miller's pyramid. Let's have a look at this pyramid. Now this is ये Miller's triangle है या Miller's pyramid है. जो clinical competency है उसकी 4 levels होती हैं. We start with the lowest level, knows, then we move on to knows how, we go on to shows, and we finally end at does. लेकिन अब 10 से ऊपर भी एक आ गई जिसको हम मास्टरी कहते हैं, जो हम यहाँ पे अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे. मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस ट्रायंगल को समझ लें. मेडिकल स्टूडेंट जब अपना करियर शुरू करता है तो वो शुरू की 2 लेवल्स पे होता है, नोज एंड नोज हाउ. नोज मीन्स कि उसको कुछ फैक्ट्स पता है. ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इसमें आप देखिए जो सबसे लोएस्ट वाली लेवल है कि अगर स्टूडेंट को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता है कि हाँ जी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होती है, हाथ रख के शायद देखा जाता है, ये नोज है, उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर, एंड दिस इज नोन एज नोज. मुझे पता है कि लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी है, ये नोज लेवल है. ठीक है, नोज हाउ है जब वो इस नॉलेज को आप तक को एक्सप्लेन कर सके कि जी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट की पोजीशन ये होनी चाहिए, और मैंने वो करेगा नहीं लेकिन आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देगा. दिस इज नोन एज नोज हाउ. मैं आपको बताऊं कि जी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, बत्ती येलो ग्रीन से एकदम रेड हो गई, मैंने एक्सीलरेटर से पाँव हटाना है, ब्रेक पे पाँव रखना है, मिरर में पीछे देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और स्लोली जीब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी को स्टैंड स्टिल करना है. आई नो हाउ टू डू इट. दिस इज नोज हाउ. सो जब मैं आप में से किसी को गाड़ी में बिठाऊं और मुझे पता है कि आप स्कोरिंग कर रहे हैं ताकि मुझे गाड़ी का लाइसेंस मिले, ड्राइविंग लाइसेंस, और मैं आपको गाड़ी रोक के दिखाऊं, दिस इज शोज हाउ. एंड डज इज जब मैं आजादाना तौर पे रात को 12 बजे बगैर किसी कैमरा के या किसी आदमी जो मुझे चेक कर रहा हो, इफ आई डू इट, दिस इज डज. आगे देख लीजिए. इफ द स्टूडेंट tells you that he knows something about abdominal examination, this is knows. If he tells you how to do an abdominal examination, this is knows how. ये दोनों levels knowledge की हैं, सिर्फ cognition part है, इसमें कोई psychomotor skill नहीं है involved. बाद में अगर वो आपको controlled environment में इम्तिहान के कमरे में बैठ के abdominal examination करके दिखाए, ये shows है. और जो हम और आप ओपीडीज के अंदर और वार्ड्स के अंदर पेशेंट को रियल क्लिनिकल लाइफ के अंदर एग्जामिन करते हैं, दैट इज डज लेवल. प्लीज टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. Yes, sir. क्लियर हो गई बात? We can move to next slide, sir. थैंक यू सो वेरी मच. मैं दोबारा रिट्रेट कर दूं, अगर मुझे पता है कि लाल बत्ती पे रुकना है, दिस इज नोज. मैं आपको एक्सप्लेन करूं वर्बली हाउ आई विल स्टॉप एट अ रेड लाइट, दिस इज नोज हाउ. इफ यू आर इंस्पेक्टर from the motor vehicle department and you are checking me for licensing and I actually do that on the road knowing that I'm being observed, this is showing controlled environment है. और अगर मैं जैसे हम और आप ड्राइव करते हैं और रेड लाइट पे जाके रुके हैं बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के, दिस इज डज रियल लाइफ के अंदर. नाउ हम मिलर्स ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं? वी यूज मिलर्स ट्रायंगल टू मैच व्हाट मेथड इज टू बी यूज्ड फॉर द कॉम्पिटेंसी. अब आपने अपने जो आपके लर्नर है उसके लिए डिसाइड करना है कि आपने क्या उसकी कॉम्पिटेंसी किस लेवल की चेक करनी है. अगर तो आपने नोज और नोज हाउ की लेवल से चेक करनी है, तो जिससे मुझे नॉलेज चेक करनी है इसकी कि इसको आता है, तो आपके लिए टूल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यूज है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और मे बी ओरल एग्जामिनेशन है. लेकिन इफ यू वांट टू चेक सोर्स जहाँ पे वो साइकोमोटर स्किल भी दिखाए आपको और एटीट्यूड भी दिखाए, तो फिर ऑस्की वुड बी अ बेटर टूल.
ठीक है? सही है सर, बिल्कुल। यस। अब आप ये देखिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस ट्रायंगल के सबके टॉप के ऊपर हो। अगर मेरा स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट रिकॉल करेगा कि मैं उसको एक एमसीक्यू दूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ए इस्लामाबाद, बी न्यू दिल्ली, सी तेहरान, ये दिस इज सिंपल रिकॉल ऑफ नॉलेज। और मुझे पता है कि सिर्फ रिकॉल ऑफ नॉलेज पे वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। मुझे इस लेवल पे कम से कम शोज लेवल पे मुझे अपने स्टूडेंट को असेस करना है, विच मीन्स के आई नीड टू यूज MCQs, I need to use case presentations and short essay questions, and I should also use OSCE. And therefore, good examination uses more than one tool or more than one instrument to check all three domains. समझ में आई आपको बात यहाँ तक? जी सर। राइट। अच्छा, 10 लेवल पे आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। ओपीडी, अच्छा आपने OSCE बहुत से लोगों ने शायद की भी होगी। OSCE के अंदर यू एक्चुअली आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म अ क्लिनिकल, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। OSCE के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। दो एग्जामिनर्स खड़े होते हैं and you are asked to perform a task. For example, take a history from this particular patient regarding his abdominal pain. अब this is an artificial situation. मैं जब देख रहा हूँ कि दो एग्जामिनर्स मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई विल यूटिलाइज ऑल माय कॉम्पिटेंसीज। एग्जाम में आके हम पेशेंट से बहुत तमीज से बात भी करते हैं, उससे एक डिटेल्ड कंसेंट भी लेते हैं, उसके आराम का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या यही बिहेवियर हम चौथी लेवल पे जब हम ओपीडी में होते हैं हम कर रहे होते हैं? मोस्ट ऑफ अस डोंट डू दैट। और हमारी असल जो है परफॉर्मेंस वो डज लेवल की है। So now we are striving to go beyond shows level into the does level, and there are different tools of assessment for does level, जिसके अंदर हमारे पास ये है DOPS है, directly observed procedural skills हैं, और workplace based assessments हैं, portfolios हैं, वगैरह वगैरह। जब हम ये आगे के lectures में करेंगे तो ये clear हो जाएगा। लेकिन as for now, please remember that a good examination will consist of more than one instrument because you have to check different levels of competency. अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हमारा आज का मकसद हल हो गया है। Is it a yes or is it a no? Yes. Yes sir. Yes sir. जिन लोगों ने अभी तक अपने ऑडियोज यूज नहीं किए हैं वो yes और no तो कह सकते हैं ना। मुझे वही आवाजें आ रही हैं 6 लोगों की। Yes sir. Yes sir, 5 लोग। Yes sir. Yes sir. Yes sir, understood. Okay, Dr. Mukim Mangi, multiple, Dr. Amreen, Dr. Noman, Dr. Amira, Dr. Ruxana. Yes sir. Dr. Ruxana, Dr. Jawad Hussain, Javed Hussain. Yes sir, मैं already बोल चुका हूँ। Dr. Yes sir. Farah Khalid, Dr. Mukesh. Dr. Mukesh, Asad, yes sir. Dr. Sadia Yes, sir. Rashid, Dr. Bharat Kumar, Dr. Sadia Rashid, ठीक है। So, Dr. Sadik, आपको आवाज नहीं आ रही थी? I'm sorry, मैंने मिस किया शायद। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सादिक, आप से मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन भी है और मैं उस एसोसिएशन का फायदा लेते हुए आपसे पूछूंगा कि अब तक जो बातें हुई इसमें कोई कबाहत या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप एज अ वेरी सीनियर कॉलीग मुझे बता दीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको क्लियर करके आगे चलें। नहीं जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि अगर किसी और को है तो वो भी मुझसे पूछ लेगा अभी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मैं सामने बाकी थोड़ा सा काम रहता है, there's not much to do. So we all agree with this statement? जी सर। Yes, sir. Thank you so much. Let's move on. चलें जी, ये आखिरी है। मेरे ख्याल में अगले 5 मिनट के अंदर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे and we are done with the presentation. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। अब क्लियर है? क्लियर है? आवाज आ रही है? जी सर, स्लो आ रही है बहुत। सर आ रही है लेकिन पहले जो क्लियर आ रही थी वो अभी नहीं आ रही। सॉरी।
मैं कुछ पढ़ देता हूँ, मुझे बता दीजिए आवाज साफ आ रही है नहीं. A good assessment tool should be valid, it should be reliable, it should be objective, and it should be feasible. Can you hear it loud and clear? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, किसी भी असेसमेंट टूल, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो, चाहे वो OSCE हो, चाहे वो DOPS हो, these are the 4 psychomotor characteristics which will tell you whether this is a good assessment tool or a bad assessment tool. हमसे पहले बहुत सारे असेसमेंट टूल्स आए, यूटिलाइज हुए, उनकी यूटिलिटी समझ में नहीं आई और वो डिस्कार्ड हो गए. मिसाल के तौर पे अगर कुछ जैसे डॉक्टर सादिक हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, हमारे एज के जो लोग हैं, हमने लॉन्ग केस और शॉर्ट केसेस भी दिए थे फाइनल एग्जामिनेशन में, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं थे, रिलायबल नहीं थे, तो वो अब इम्तिहान का हिस्सा नहीं बनते हैं. देयर आर रीजंस फॉर दैट बिकॉज दे डू नॉट पोजेस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. अगले 4 स्लाइड्स के अंदर हम क्विकली इनको समझ लेंगे और फिर वील से गुड बाय टू ईच अदर. ठीक है, चलें जी. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी. अगर मैं आपसे कहूं कि जी इस वक्त टेम्परेचर क्या है बाहर, तो आप कौन सा टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? थर्मोमीटर. कंटेंट वैलिडिटी मोबाइल पे सारा होता है. मोबाइल से मोबाइल पे नहीं रहता. मोबाइल पे क्या आप SMS वाले ऐप में जाएंगे? Weather app on the phone, वेदर the car, वाले वेदर वाले it shows in the car. वेदर वाले Can we have one person at a time? मेरा सवाल ये है, सिंपल सवाल, कि मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या है या बाहर का टेम्परेचर क्या है, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? थर्मामीटर. थर्मामीटर से. अगर मैं आपसे कहूँ कि फुट रूलर के साथ टेम्परेचर नोट करें, तो क्या आप खुश होंगे? आप कहेंगे यार बहुत ही बेवकूफाना बात कर रहा है. मोबाइल थर्मामीटर से अभी तो हम बैठे हैं, अंदर बाहर आके देखेंगे, बॉडी से कोरिलेट करेंगे. मेरा बहुत सिंपल सवाल है. थर्मामीटर किसी के हाथ में नहीं है सर. मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है आपसे. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टेम्परेचर इस पेशेंट का नोट करके बताइए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर सर, बिल्कुल सही है. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करके दें, व्हाट इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज? बिल्कुल ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये कील है, इसको दीवार में ठोकनी है, तो कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? टूल यूज करेंगे. अगर मैं आपसे कहूं कि जूते की हील से करें कील, तो हो तो जाएगी, लेकिन क्या ख्याल है कि जिसने हथौड़ी यूज की उसने बेहतर तरीके से ठोकी है कील या जिसने जूते की हील यूज की है? हैमर वाले ने. हैमर. बस यही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो कॉम्पिटेंसी आपने असेस करनी है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट उसको असेस सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर आपने ये देखना है कि मुझे एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करनी आती है, तो क्या MCQ अच्छा टूल है या OSCE अच्छा टूल है? OSCE. लिहाजा a validity means that whether your assessment tools actually measures what it intends to measure. If you are measuring a psychomotor skill with a paper and pencil test like MCQ, it is not a valid test. समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. Everyone. So validity का मतलब ये है कि आपने पहला ये काम करना है, मुझे कॉम्पिटेंसी कौन सी चेक करनी है. अगर तो आपने मेरी नॉलेज चेक करनी है, तो MCQs is a good and a valid test. लेकिन अगर आपने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करनी है कि हाउ डू आई कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स, तो टेल मी व्हिच टूल इज बेटर, अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन
or a standardized patient? Standardized patient. Standardized Standardized patient. Standardization, because your assessment tool, which is a standardized patient, is actually testing the competency of communication, which an MCQ will not check. So if your assessment tool is actually checking the competency that you want to check, it is a valid instrument. There are two types of validity, a content validity and a construct validity. मैं quickly इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. कंटेंट वैलिडिटी क्या है? अगर मुझे सर्जरी का पेपर बनाना है फाइनल ईयर MBBS के लिए और उसमें 100 MCQs देने हैं और उसमें से 90 MCQs मैं थायराइड के ऊपर दे देता हूँ और बाकी 10 मैं पेंक्रियाज और वेस्कुलर सिस्टम और किसी और हर्निया में से दे दूं, so this is a poor content validity because the examination does not represent the entire curriculum. ठीक है? Does that make sense? Yes. अगर आपने एक कार्डियोलॉजी का पेपर बनाना है और सिर्फ मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे सवाल पूछा और एरिथमियाज पे और वेल्व्स पे और दूसरी चीजों पे उसमें क्वेश्चंस ना हो, this has a poor content validity. Yes sir, बिल्कुल. क्योंकि अगर आपने एक लर्नर को टेस्ट करना है एक पर्टिकुलर करिकुलम से, तो जो आपका टेस्ट पेपर होगा, जाहिर है वो आप पूरा करिकुलम तो नहीं पूछ सकते, आपको उसका रिप्रेजेंटेटिव पेपर बनाना है which should contain all the topics that you have taught to the student और all the topics be based on their importance, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अगर मैं सर्जरी का क्वेश्चन बनाऊं और बहुत अच्छा उसका कंटेंट स्प्रेड आउट कर दूं, लेकिन क्रोन्स डिजीज जो पाकिस्तान में है ही नहीं, उसमें मैं 20 सवाल डाल दूं, तो ये भी पुअर कंटेंट वैलिडिटी हो जाएगी. सो योर एग्जामिनेशन शुड नॉट ओनली बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर curriculum but should also represent the content according to their importance or weightage. और इसके लिए एक टर्म यूज कर लीजिए जो कि आपके लिए शायद नहीं है, जिसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, TOS. ये वो टर्म्स हैं जो आपको अब जिंदगी में काम आएंगे एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस या ब्लूप्रिंट कंटेंट एक्सपर्ट्स बनाते हैं. ये एक टेबल होता है जिसकी एक साइड पे टॉपिक्स लिखे होते हैं और दूसरी साइड पे उनकी वेटेज होती है कि इस टॉपिक में से इतने सवाल देने, इस टॉपिक में से इतने देंगे. जब आप ब्लूप्रिंट को यूज करके पेपर बनाएंगे, योर पेपर और योर टेस्ट, जो टेस्ट पेपर होगा, इट विल हैव अ गुड कंटेंट वैलिडिटी. लेट्स मूव ऑन. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वही चीज है कि अगर तो जो स्कोर्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतर रहे हैं, so it's a good construct validity. Let me give you an example. अगर आपने क्या मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं किसी आदमी की, और जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके तो स्कोर कम आ रहे हैं और जो नॉन इंटेलिजेंट हैं जिनकी IQ लेवल कम है उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं. तो क्या ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है या नहीं है? ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि आपके, मैं आपको एक चीज मिसाल देता हूँ. इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस नजर आती है? नहीं, इंटेलिजेंस नजर नहीं आती है. जो चीज नजर नहीं आती उसको हम मेडिकल एजुकेशन में कंस्ट्रक्ट कहते हैं. आपने एक बच्चे की इंटेलिजेंस को असेस करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो चेक किए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंट लोगों की डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर आप असेस करेंगे और इस पे स्कोरिंग हाई आती है इंटेलिजेंट लोगों की, तो आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है. लेकिन अगर आपके टेस्ट पेपर में जो एक्चुअली इंटेलिजेंट लोग हैं उनके तो मार्क्स कम आ रहे हैं और जो इंटेलिजेंट नहीं है उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो दिस इज अ पुअर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. आपकी लेवल पे इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि वैलिडिटी मींस कि योर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू चेक. रिलायबिलिटी क्या होती है? अगर एक क्लासरूम में जैद
नंबर 1 आता है, सॉरी जैद एक टेस्ट पेपर में 87% मार्क्स लेता है और दूसरे सिमिलर पेपर के अंदर, डिफरेंट बट सिमिलर पेपर के अंदर वो 20% मार्क्स लेता है, दिस इज अ नॉन रिलायबल टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट्स हमेशा वही रिप्रोड्यूस होती हैं हर टेस्ट में, तो दिस इज अ रिलायबल टेस्ट। ये बात समझ में आई है या नहीं आई समझ में? काइंडली रिपीट इट सर प्लीज। पहले रिलायबिलिटी की डेफिनेशन समझ में। रिलायबिलिटी मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द स्कोर्स। अगर मैं एक टेस्ट पेपर अभी दूं मैं आपको और उसमें एक स्टूडेंट के 80% मार्क्स आते हैं और मैं एक दूसरा टेस्ट पेपर दूं जो उसी टाइप का हो, उसी कंटेंट का हो, डिफरेंट हो लेकिन सिमिलर कंटेंट हो, और उसमें कैंडिडेट के 10% मार्क्स आते हैं, तो ये टूल रिलायबल नहीं है क्योंकि स्कोरिंग कंसिस्टेंट नहीं है। मैं इसको ज्यादा प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दूं। मैं 100 एमसीक्यूज बनाता हूं और उनको मैं रैंडमली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पेपर 1 बनाता हूं जिसमें उसमें 50 क्वेश्चंस हो और दूसरे में 50 क्वेश्चंस हो, और उसमें जेड के पेपर 1 में तो 80% आते हैं और पेपर 2 में उसके 20% आते हैं। दिस इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट। लिहाजा जरूरी है कि आप अपने टेस्ट इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को भी चेक करें। रिलायबिलिटी कैसे चेक होती है, उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। छोटा टेस्ट कम रिलायबल होता है, लंबा टेस्ट ज्यादा रिलायबल होता है। अगर मैं इस वक्त 5 सवाल दूं और डॉक्टर कोई और आपको एक 100 क्वेश्चन का पेपर दें, तो जो 100 क्वेश्चन का पेपर है वो ज्यादा रिलायबल होगा बनिस्बत 5 के। छोटा सैंपल होगा, कम रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। जब आप 100 क्वेश्चंस का पेपर बनाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिलता है कि वो डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस को इक्वली असेस कर सके। डॉक्टर सानिया। सर इस पे मैटर करता है कि पैटर्न ऑफ टूल, जैसे कुछ लोग होते हैं वो शॉर्ट ईसीक्यू अच्छा करते हैं, कुछ एमसी बेस्ट चूज द बेस्ट ज्यादा बेहतर करते हैं, तो क्या इस पे डिपेंड करता है रिलायबिलिटी? आई डोंट नो। इसीलिए अगर करता भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है एंड आई विल फाइंड आउट। लेकिन इसी वजह से यही जो आपने बात की है कि कुछ लोग, देखिए हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं ऑस्की में तो बहुत अच्छा स्कोर कर देता हूँ, लेकिन थ्योरी में मैं 0/0 हूँ। ठीक है ना, तो जो कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट बनेगी, मैं ऑस्की की वजह से पास हो जाऊंगा चाहे थ्योरी में बेकार हूं मैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत सारे टूल्स हों ताकि सारे लोग, देखिए कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी कि अगर मैं नॉलेज पार्ट मेरा खराब है और मैं ऑस्की की बुनियाद पे पास हो जाऊं, जबकि आपको नॉलेज और ऑस्की के बारे में बराबर बराबर स्किल है, आप फेल हो जाएं। लिहाजा यू शुड हैव मोर देन वन टूल एंड यू शुड मिक्स द मार्क्स ऑफ ऑल। ये नहीं हो कि जी चले इसका थ्योरी बेकार आई है ऑस्की की वजह से इसको पास कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें जी, मल्टीपल टूल्स होने चाहिए। मल्टीपल सर टूल्स होने बस एक एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो अगर 100 की डेटा है तो उसका रिजल्ट जो है वो इतना वैलिड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। 200 और 500 वाला ज्यादा रिलायबल होगा। सो ग्लैड डॉक्टर रुखसाना आपने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है। सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। सैंपल साइज एग्जैक्टली, जब आपका सैंपल साइज बड़ा होगा खुद ब खुद एग्जाम रिलायबल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैं सॉरी अब बहुत टाइम हो गया, आप लोग बेजार भी हो गए होंगे, इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप एमसीक्यूज बनाएं तो उसकी लैंग्वेज, उसके ग्रामर पे भी तवज्जो दें। मैंने ऐसे एमसीक्यूज देखते हैं कि समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है। अच्छा, जब स्टूडेंट को नॉलेज तो होगी लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी खुद ब खुद कम हो जाती है। सो ग्रामेटिकली द पेपर अगर खराब है तो उसकी रिलायबिलिटी खराब हो जाएगी। बाकी 2 स्लाइड्स हैं, देन वील फिनिश। ऑब्जेक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, इट इज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर पहले से आप दे देते हैं और उसके सब लोग एग्री करते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड फाइनली फीजिबल। एक पेपर ऑब्जेक्टिव भी है, एक टेस्ट रिलायबल भी है और वैलिड भी है, लेकिन वो फीजिबल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है।
मैं कहता हूँ जी ये तो यूके में इम्तिहान होता है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान में ना हमारे पास फाइनेंसेस है उसको करने की, ना मेरे पास इतने बड़े हॉल्स हैं, ना मेरे पास इतना स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इम्तिहान भी बेकार है. So make sure that whatever tools you use, they should be valid, they should be reliable, they should be objective, and they should be feasible. Now, this is the last slide. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा पहला सवाल था कि क्या असेसमेंट और एवेल्युएशन डिफरेंट है? The answer was yes. Assessment Yes, sir. Yes, स्टूडेंट sir. की होती है और इवेल्युएशन प्रोग्राम की देखो ना होती वो है. लिस्ट में ही नाम लिख रहे नहीं तो ये ना कुछ नहीं तो कल्याण होता कुछ मना को नहीं खबर ये बात नहीं तो राशिद ना फोन कर Now, please, do you डॉक्टर agree with गिरीश this? आवाज बंद कर दे किलो. All right. मेरा दूसरा सवाल था, should we assess? Yes, we should assess because it is beneficial. It is beneficial because A, it is formative in nature, in which you give feedback to the student to cover their deficiencies, and assessment is beneficial because you want to certify or pass or fail a student, what we call a summative assessment. Assessment इसलिए भी beneficial जी. सर मेरा क्वेश्चन वो जो लास्ट में आपने होल्ड किया था यहीं पे था प्लीज कि एवल्यूएशन प्रोग्राम की होगी या वो टीचर और स्टूडेंट की भी एवल्यूएशन होती है? देखें, एवेल्युएशन जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज. अगर आप लर्नर की कर रहे हैं, स्टूडेंट की कर रहे हैं और पर्पस उसको पास फेल करना है या उसको इम्प्रूव करना है, इसको हम असेसमेंट कहते हैं. अगर आप किसी करिकुलम की कर रहे हैं, आप किसी डिग्री प्रोग्राम की कर रहे हैं, आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम की कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप की कर रहे हैं, वो इवेल्युएशन है. उसमें टीचर भी आ जाता है. हमें QEC के अंदर ये कहा जाता था HEC की तरफ से कि इवेल्युएट करें टीचर्स को कि वो कैसा पढ़ाते हैं. दिस इज नॉट असेसमेंट, दिस इज इवेल्युएशन. ठीक है, तो इवेल्युएशन जी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से अकॉर्डिंग टू द टीचर्स टीचिंग मेथड्स हैं, तो yes, ये आ yes. गया एवल्यूएशन में. दिस इज इवेल्युएशन. सर एक्सक्यूज मी सर. जी डॉक्टर सर डिफरेंस बिटवीन एवल्यूएशन एंड ऑब्जर्वेशन. देखें, अब आप खुद इसका जवाब देंगी मुझे. ठीक है, मैं आपसे कहूं कि ये बर्गर कितना अच्छा है, मैं इसको देख के आपको बहुत अच्छा है, ये ऑब्जर्वेशन है. मेरे पास कोई इसकी आप मुझसे कहेंगे जी कैसे आपने कैसे कह दिया ये अच्छा है. मैं आपसे, आप HEC की चेयरपर्सन है डॉक्टर रुखसाना, ठीक है, और आप मुझसे कहते हैं कि आप मुझे सॉरी रेनाज, आप डॉक्टर रेनाज HEC की चेयरपर्सन है और आप मुझे कहते हैं कि जी डॉक्टर फैसल ये डिग्री प्रोग्राम है, एक कॉलेज की तरफ से आया है, ये अच्छा है या बुरा है. मैं आपको ये बड़ा जबरदस्त है, ये ऑब्जर्वेशन है. मेरे पास कोई स्कोरिंग नहीं है, मेरे पास मीटर नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कन्विंस कर सकूं. जैसे मैंने आपको बर्गर दिखाया था ना, लेट मी फिनिश. जब तक आप सिस्टमैटिकली इवेल्युएट नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहेगी. जब आप स्कोरिंग करके मार्क्स देके जस्टिफाई करेंगे, दिस इज इवेल्युएशन. साइंटिफिकली आप डेटा को जमा करेंगे, यू विल इंटरप्रेट the data, analyze the data, and then come up with a report. This is evaluation. Observation. सर मैंने आंसर यही लिखा था सर. नहीं. सर मैंने आंसर यही लिखा था. ठीक है, जबरदस्त. सर ये जो हम जो असेस कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी हुई एज कंपेयर टू एवेल्यूएशन whenever we people are assessing our students? मुझे नहीं सवाल समझ में आया गिरीश. सर हम जो भी आई मीन स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करते हैं आफ्टर टीचिंग व्हाट एवर बी द टूल विल बी देयर मींस मल्टीपल फॉर एग्जांपल. तो ओवरऑल असेसमेंट जो है ना दैट विल बी फॉर एग्जांपल वी पीपल आर assessing by our student that is enough to be promote that is known as the internal assessment. तो वो हो गई इंटरनल होना चाहिए. परसेंटेज कितनी हुई सर कि हम कहेंगे 50% कहेंगे असेसमेंट, 50% एवोल्यूशन और 90% असेसमेंट और 20% और 10% एवोल्यूशन? नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं.
इनका आपस में कोई रब्त नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं दी जाती है। You सर can't do पैसे that. नहीं सर, आई एम रुखसाना जवाब देना चाहती हूँ मैं इस चीज का ना, मैं दूंगा आसान तरीके से बिल्कुल। जी मैम। सर दोनों की असेसमेंट ही होती है, वहाँ पे स्टूडेंट की है और वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की असेसमेंट है। इवेल्यूशन आप ना समझे, जैसे एक जगह पे असेसमेंट है, एक जगह दोनों पे असेसमेंट है, मगर एक स्टूडेंट की असेसमेंट है, एक रूल्स रेगुलेशन की असेसमेंट है, ये समझ लें। दो चीजें हैं, असेसमेंट दोनों पे ही है। जब रूल्स रेगुलेशन की असेसमेंट हो रही है तो उसको हम इवेल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है, जो हम इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से आ रही है, और जब स्टूडेंट की हम कह रहे हैं तो वो हमारी असेसमेंट में आ रही है। आप जो रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं उसको अगर आप रिप्लेस करके वर्ड पॉलिसी से तो वो ज्यादा बेहतर है। पॉलिसी जो क्या आती है ऊपर से। और डॉक्टर नरेश और डॉक्टर मुकेश जो भी थे, देखें आप ये परसेंटेज में ना डिवाइड कीजिए कि 80% असेसमेंट होनी चाहिए। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनका ये पैरेलल भी चल सकती हैं। यू डोंट हैव टू डिवाइड देम इन परसेंटेजेस। चलिए टोटली डिपेंड अपॉन दी योर ऑब्जेक्टिव, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पे मतलब जो ना हमें मतलब असेस करना होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप प्रोग्राम को कर रहे हैं, वी शुड यूज मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स टू असेस, बिकॉज वी वांट टू असेस कॉम्पिटेंसीज और नॉट डोमेन। और हर कॉम्पिटेंसी के अंदर एक से ज्यादा डोमेन होता है, लिहाजा कॉम्पिटेंसी जो आपको असेस करनी है उसके लिए आपको मल्टीपल टूल्स यूज करने पड़ेंगे। ऑल यू नीड टू डिसाइड इज कि व्हाट कॉम्पिटेंसी यू वांट टू चेक। इसके लिए मिलर्स ट्रायंगल आपको हेल्प। ओके सर। Using the Miller's triangle, we should use the tools. ठीक है, and the good test should be valid since. अब मैं चैट बॉक्स भी खोल लेता हूँ, अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एंड बिफोर वी से गुड बाय। वो मुझे मैंने आपको पहली स्लाइड पे बता दिया था, आई हैव टू गो एंड सी अ मूवी, इससे आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, बट स्टिल वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। Dr. Gautam. So actually, thank you, Dr. Vav. What is a difficulty index for the question? So atom, yeah, we are assessing the difficulty index. जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गौतम, बहुत जबरदस्त सवाल किया है आपने। और देखें, ये डिफिकल्टी इंडेक्स एक तरीका होता है पोस्ट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का। जब स्टूडेंट ये कहते हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल आया था, पेपर बड़ा आसान था, ये ज़बानी चीज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है वो हमेशा इम्तिहान होने के बाद हर क्वेश्चन का डिफिकल्टी इंडेक्स निकालता है। और डिफिकल्टी इंडेक्स निकालने का तरीका ये होता है कि 100 स्टूडेंट्स अगर हैं क्लास में तो एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी इंडेक्स इस तरह निकाला जाता है कि टॉप के 10 लोगों में से कितने ने उसका सही जवाब दिया है और बॉटम के 10 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स में कितनों ने उसका सही जवाब दिया है। उसको माइनस करके हम 2 से डिवाइड करके जो नंबर आता है वो होता है उसका डिफिकल्टी इंडेक्स। अब मुझे एग्जैक्टली फॉरगिव मी फॉर दैट, ये नंबर्स में मैथ्स में कभी भी अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन डिफिकल्टी इंडेक्स की एक रेंज होती है। अगर उस मेरे ख्याल में 8 है या आई एम नॉट श्योर, अगर 8 से कम है तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इट शुड बी डिस्कार्डेड। और अगर 8 से ज्यादा है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट शुड बी डिस्कार्डेड। तो डिफिकल्टी इंडेक्स शुड बी समवेयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप चेक कर दीजिएगा, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 6 and 8। तो ये बाकायदा हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी इंडेक्स निकाला जाता है और जो उस इंडेक्स के बीच में आता है उन क्वेश्चंस को बैंक में रखा जाता है, जो उससे बाहर होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि वो फिर आपकी रिजल्ट्स को बायस कर देते हैं। और जब हम सीपीएसपी के अंदर इम्तिहान का पेपर बनाने जाते हैं तो हमें जब वो क्वेश्चन दिए जाते हैं कंप्यूटर से तो हमेशा उनके नीचे उनका डिफिकल्टी इंडेक्स लिखा होता है। मुझे टाइम मिला तो मैं डिफिकल्टी इंडेक्स को जरा बेहतर तरीके से अगली दफा आपको डॉक्टर वाहब, थैंक यू सो मच। आपने एक फॉर्मूला बताया है, ये जरा बता भी दें क्या है। P is equal to R upon T। Number of responses is the R. Yeah. And total number of responses, which Yes. includes the correct and the incorrect responses. I think so. और ये जो R दिया है ना आपने, This is just a general
formula. बिल्कुल सही है, नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो R है वो इस तरह निकाला जाता है कि ऊपर के 10 या 20 स्टूडेंट्स को और नीचे के 10 या 20 स्टूडेंट्स को माइनस किया जाता है जिन्होंने करेक्ट, मतलब अगर ऊपर You के set a 10 range. स्टूडेंट्स You can have ऐसे ही है ना? 33%. You can have a 33 top 33 and bottom 33. You can have 25. It's about कैसे भी evaluator चाहे उसको assess करना medical education वाला. Depends grateful, what Dr. your Bhatt. range is. You are a lifesaver. Thank you so much, Dr. Bhatt. Thank you so very much. Any other questions? सर ये No, sir. डिफिकल्ट Thank इंडेक्स you. वाला जो बहुत ना आप अच्छा जरूर क्लास session लीजिएगा। था। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं आपसे। यस सर। जी सर। मैं एक डॉक्टर मुनीब को बुक भेजूंगा। इट्स प्रॉब्ली द सिंपलेस्ट बुक ऑन मेडिकल एजुकेशन। ये आपको हेल्प करेगी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। इट्स रिटन बाय ए पाकिस्तानी जो सिंगापुर में है, जुबैर अमीन। मैं वो इंशाल्लाह मैं मुनीब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ईमेल कर दें ताकि कॉमन टॉपिक्स एक दफा आप रिवाइज कर सकें उसमें, ठीक है? आई थिंक दैट विल बी अ गुड बुक फॉर यू। ज्यादा डिटेल वाली बुक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, ज़ाहिर है आप लोग सब बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो आई डेफिनेटली मेक श्योर कि यू रिसीव दैट बुक एसएप। ओके। चलें जी, शैल वी से खुदा हाफिज़ नाउ।